ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਗਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ? 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਦੁਖੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਨਾ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਰੇ ਕਿ ਨਿਕੋਸ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਕਾਰੀ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੋ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਦਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਮਹੱਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਲਣ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੁੱਬ ਡੋਹੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੇ। ਐ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो विचार के देखो, ये तीसरी अरदास है। और चौथी अरदास जेड़े ज्ञानी हैं, जेड़े उस मालक दे नाल मिल जाना चाहते हैं, उस दे चरणों दे विच जाके जगह पाउणी चाहते हैं, उन्हां दी अरदास सब तो उच्ची है। ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ स्वामी जी महाराज एक ऐसी रूह की अरदास जिहड़ी है वो साडे अगे उसका नमूना पेश कर रहे हैं, जिहड़ी निरोल उस मालक के रंग विच रंग के उसके चरणों विच निवास करने की खाश रख रही है। तो गुरु अगे प्रार्थना कर रही है। गुरु नूं की कह रही है, फिर प्यार नाल सुनो। गोरे करो मेहर की दृष्ट दास पल पल दुख पावत। कहते ने हे सतगुर तुसी मेहर दी निगाह करो। मेहर दी एक नजर जिहड़ी है वो तुसी बख्श दिओ। क्यों? तुहाडी मेहर दी नजर दे नाल मैं पाक साफ हो के ਜਿਹੜਾ मैं इन्हां दुखों विच गुलतान होया हाँ, इन्हां तो निजात हासिल करके मैं उस मालक के चरणों विच जा निवास करा। मैनू कुछ नहीं होर चाहिए। भाई नंद लाल जी गोया ने दिल अर्पण करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज दे अगे, तां उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछया कि सुना इसकी कीमत की दें? तो उसने कहा सी महाराज यक निगाहे जां फजाइश वेश वद दरकारे मां। मैं सिर्फ तेरी एक मेहर की निगाह मंगदा हाँ, मैनू इस तो वध होर किसी चीज़ की लोड़ नहीं। सतगुर को जदों असीं मंगना है उस पासों मेहर मंगनी है, दया मंगनी है। मेहर और दया दे विच सारे पदार्थ जिहड़े हैं छिपे हुए हुंदे हन, उहदे विच किसी गल दी किसी पासे लुकाट नहीं होंदी। तो गुरु साहब ने उस वक्त कहा सी नंद लाल ये चुक ला अपना दिल, ये सौदा महंगा है, ये बहुत महंगा है। एक मेहर की निगाह मंग रहे हैं दिल दे के। तो विचार के देख लो गुरु की मेहर की निगाह जिहड़ी है वो कितनी उच्ची हुंदी है। पर सिख जद मंगदा है गुरु पासों मेहर की निगाह मंगदा है। इस विच ऐसे अनेकों राज छिपे हुए हैं जिहड़े ज़बान नाल बयान नहीं हो सकते। जी मैं आरत करूं बनाए रोग सब ही काट जावत। कहंदे जिहो जिहे मेरे पासों हिरदे दे विचों शब्द निकले हैं, मैं उन्हां टुटिया फुटिया शब्दों के नाल जो मेरे पासों मेरे अंदरों गल कही जा सकती है, मैं उस ढंग नाल तुहाडे पास प्रार्थना कर रहा। और मैनू पता है मेरे टुटे फुटे शब्दों की अरदास जिहड़ी है तुसीं कदी नहीं मोड़ोगे, जरूर कबूल कर लो। जे तुसां मेरी कबूल कर लई मेरे दुखों का किनारा हो जाना है, कोई दुख मेरे लागे नहीं रहना। इस वास्ते हे सतगुर मेरी अरदास और बेनती जिहड़ी है वो कबूल करो ताकि मेरे दुखों का नाश हो जाए। जी निज आंगन देखूं
कहते ने क्या मुख ले बिनती करूं लाज आवत है मोए। ये सतगुर जिस वक्त मैं अपने कुकर्मां वल ध्यान दिना हाँ, अपने औगणा वल तकदा हाँ, मैं सोचदा हाँ कि मैं ये जुर्त ही किस तरह कर रहा हाँ सतगुर दे अगे जाण दी और उस पास अगे जाके प्रार्थना कर। कहते मैं तो औगणा नाल भरिया होया हाँ, गुनाहां नाल भरिया होया। अरदास जिहड़ी है इस विच किस चीज़ की वडियाई है, ये हर इंसान अंदर निम्रता लियाउंदी है, दीनता लियाउंदी है। जिन्ना चिर तक ये पुरुष निम्र नहीं होंदा, दीन नहीं हो जाता, उन्ना चिर तक ये परमार्थ के मार्ग के उत्ते चल ही नहीं सकता। तो बड़े बड़े का हंकार झाड़ के गुरु जिहड़ा है उन्होंने दीनता के पासे लियाउंदा है। गोपी चंद नूं नाम दिता, वालनाथ ने सोचिया इस दे अंदर राजेपुणे का हंकार है, जिन्ना चिर तक ਇਹਦੇ पासों झोली इस दे गल विच पवा के इस दे अपने शहर विच घर घर ਇਹਦੇ पासों भिखिया ना मंगवावांगा, उन्ना चिर तक ਇਹਦੇ दिल च ਇਹੋ ही मान रहना भी मैं राजा सा। पीपक क्षत्रिय राजपूत होया है। रविदास जी ने अपने टुटिया हुई जुत्तियां का जिहड़ा टोकरा है उसके सिर से चुका के चौराहे विच रखवाउणा और उथों चुकवा के घर वापस लिया। किस खातर से उहदे अंदरों राजेपुणे का हंकार उठ जाए। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैं दसदियां हैं कि जिन्ना चिर तक असी दीन ना हो जाइए असी इस मार्ग उत्ते नहीं चल सकते। और ये अरदास ही है। जदों कोई राह नहीं लभदा फिर अरदास राही सिख नीवा हुंदा है। ये दीनता विच आउंदा है, ये निम्रता च आउंदा है और अपना असली मार्ग पकड़ लेता है। जिन्ना चिर किसी चीज़ का चित्त च अहंकार है ये उन्ना चिर ही इस परमार्थ तो बहुत दूर डिगा पिया है। जी क्यों कर करूं पुकार काले आद परमावत। हुण सिख अपनी बेबसी दस रहा है। कहते मैं पुकार किस तरह करा सतगुरु, जो मेरे उत्ते हमला काल ने किया होया है मैं बयान नहीं कर सकता। ये काल जिहड़ा है तेरा प्यार छुड़ा के, भजन सिमरन छुड़ा के, सत्संग दे विचों दूर करके कहते ने मैनू उपाधियां दे विच तक रहा है, मैनू बुरियां कम्मां दे विच तक रहा है और इस पासे लो मेरा प्यार दिन ब दिन फिक्का करता जा रहा है। हे सतगुर दस मैं की करा, मैं निर्बल हाँ, कमजोर हाँ, मैं इसकी मार नहीं सह सकता। एक तू है जे आसरा देवें तो शायद मैं ये बल तो बच जावां। जी काम क्रोध आते जोर जीव इनने चख मारत। हुण कहंदा कित्थों तक औगण अपनी बयान करा। काम और क्रोध दोही ही परमार्थ नूं नाश कर देने वाली शक्तियां हैं। निरा परमार्थ ही नहीं नाश करदियां, ये देह का भी सत्यानाश पुट दिंदियां। वाणी विच आउंदा है काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा टाले। काम क्रोध इस शरीर नूं भी इस तरह तबाह कर दिंदे हैं जिस तरह कंचन सोना जिहड़ा है वो किन्नी अग होवे लाल हो जाएगा लेकिन पानी वांग नहीं टलेगा। कदों टलेगा जब उहदे विच सुहागा पा दिता जाएगा, फिर पानी पानी हो जाएगा। हे सतगुर, ये काम क्रोध दीयां शक्तियां जिहड़ियां हैं इन्होंने तो मैनू बिल्कुल खज्जल खुवार कर दिता है। मेरा ध्यान इस पासे लगने नहीं देंदियां। मैनू इन्हां असली ताकतां तो बचा, जिस तरह भी हो सकता है मैनू इन्हां तो बचा। मैं तेरी पनाह लई है, तेरा आसरा लिया है, मेरे ते रहम कर। जी राधा स्वामी लियो बचाए रहूं मैं अत घबरावत। मैं बहुत घबरा रहा हाँ, कृपा करके मेरे से दया कर और मैनू इन्हां तो बचा ला। तो जब
सिख अपनी ताकत जिहड़ी है वो एक पासे रख दिंदा है, गुरु की ताकत का मोहताज हुंदा है तां परमार्थ विच अगे कदम वधदा है। जदों ये कहंदा है मैं अपने बल नाल जाना हाँ, जिस वक्त भजन सिमरन बनदा बनदा रुक जाता है, पहला समझदा है कि शायद ये कुदरती काम हुंदा तुरिया जा रहा है, जिन्नी तरक्की हुंदी तुरी जा रही है कुदरती हो रही है, इहदे विच सतगुरु का की जोर लगन दिया है तो मेरा की लोड़ जोर लगन दिया है। पर जदों वो चीज़ हाथ चों निकल जाती है, लंबियां मेहनतां मारन दे नाल फिर प्राप्त नहीं हुंदी तो फिर गुरु की कदर का पता लगता है भी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा सी ये सारी गुरु की वडियाई सी। उस वक्त गुरु की अजमत का पता लगता है। पहला तो ये सब कुछ समझा है कि खबरें इस तरह सब कुछ हो ही जाया करता होएगा, इस वास्ते इस तरह ही हो रहा है जी। सुनिए दीन दयाल तुम्हें मैं तेरे सुनावत। दीन दयाल किस नूं कहंदे हैं? जिहड़ा दीनां दे उत्ते दयाल हो जाता है। जिहड़े आजिज़ लोग हैं, जिन्हां दे अंदर दीनता आ चुकी है, निम्रता आ चुकी है, कुल हंकार निकल चुके हैं, उन्हां ते दया करने वाला जिहड़ा है वो दयाल है। तो गुरु साहब नूं मुखातब होके सिख कह रहा है, हे दीन दयाल, मैं तो हुण आजिज़ होके सारे पासे त्याग के तेरा ही रुख कीता है, मेरे ते कृपा कर, मेरे ते दया कर। जे तू मेरे ते तरस ना कीता तो मेरे वास्ते नजात का होर रास्ता संसार होते कोई नहीं जी। तुमको समर्थ जान कहूँ यह दर्द बुझावत। कहते सारा संसार जिहड़ा है पिया होया है, मैं होर तो भी मदद मंग सकता था और होर थावां तो भी दुखों की निवृत्ति करने की कोशिश कर सकता था, पर हे सतगुर हुण सोझी आ गई है, तेरे बराबर का संसार उत्ते कोई नहीं है, किसी पासे दुखों की निजात नहीं हो सकती, किसी पासों फायदा नहीं पहुंच सकता। फायदा जद पहुंचना है तेरे दरबार चो पहुंचना है। इस वास्ते मैं सारे पासे वालों हार के, सारे पासे वालों रुख मोड़ के मैं तेरा रुख कीता है, तेरी पनाह विच आया हाँ और तेरी शरण च आया हाँ। हे सतगुर दया कर, और दया करके कहते ने मेरे सारे औगुण जिहड़े हैं बख्श के मेरे ते मेहर कर जी। खोलो प्रेम द्वार, नहीं मोहे कर्म बहावत। हे सतगुर मेरी की दिशा है, मैनू नाम लैके भी अजे मेरा प्रेम का दरवाजा तुसा नहीं खोलिया, और अजे भी कर्मां का बल और कर्मां का जोर जिहड़ा है मैनू तंग कर रहा है। कहते कर्मां दे बल और कर्मां का जोर किहो जिहा है, जिस तरह तेज रफ्तार पानी तेज रवानी नाल चल रहा हो। तो कहते मैं इन्हां कर्मां दे विच हे सतगुर रोड़े पिया होया हाँ। कदे मैनू ये कौमां मुल्कां दे दुख सताउंदे हैं, कदी धीआं पुत्तां दे दुख सताउंदे हैं, कदी रिश्तेदारां संबंधियां और साकां संबंधां दे दुख सताउंदे हैं, कदी अपनी देह दे दुख सताउंदे हैं। मैं अपने कर्मां दा भार नहीं चुकिया होया, सब दे कर्मां दे वेग विच मैं रुड़िया तुरिया जा रहा हाँ। अगर उंगली पकड़ के बांह पकड़ के चुक के तू किनारे से कढ़ लवें तो ये तेरी दया है, जे तू ना कढ़े तो फिर मैं रुड़िया जा रहा हाँ। फिर ना मैनू ताना दई, मेरे वस की कोई गल नहीं, जो कुछ मेरे अंदर हकीकत है मैं वो आप अगे खोल के बयान कर रहा। हे सतगुर कर्मां दा रोड़ इन्ना तेज है, जे तू मैनू मेरे प्रेम का दरवाजा ना खुलिया मैं जरूर रुड़ जाना है, जरूर रुड़ जाना है। इस वास्ते दया कर, प्रेम का दरवाजा खोल, बांह बाहर कढ़ और पकड़ के मैनू अंदर दाखिल कर लै जी। शब्द माहे दृढ़ करो, रहूं
छिन छिन गुण गावत। हे सतगुर, नाम लैके मेरी अवस्था ये है, मैनू सिमरन याद नहीं आता। हे सतगुर, मैं भजन ते बैठने की कोशिश करना हाँ, मैं भजन ते नहीं बैठ सकता। सतगुर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ दुनिया के दुख और कष्ट ਜਿਹੜੇ ਹਨ मेरे आले दुआले घेरा कट के बैठे हुए हैं, मेरी तवज्जो इस पासे वाल आउण नहीं दे। तो कहते हैं जिन्ना चिर तक तेरी दया ना होवे मैं शब्द नाल किवें जुड़ सकता। मेरे अपने च कोई बल नहीं है, ताकत नहीं है। ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं बिना गुरु की सहायता और मदद दे असी आप ही उस शब्द नाल जुड़ के आप ही उस मार्ग से चल सकते हाँ, वो तो भुले हुए हैं, गुमराह हुए। काल दीयां शक्तियां जिथे बाहरमुखी सानू इस तरह तंग कर रही हैं, साडा चित भजन वाले पासे नहीं आउण दिंदियां, सानू नाम सुनन नहीं दिंदियां, उस दो घड़ियां बैठन नहीं दिंदियां। अंदर जाके देखो, अंदर तो इस तो भी वधेरियां रुकावटां जिहड़ियां ने पा के बैठे। मौलाना रूम जी कहते हैं पीर रा बिगजी के बेपीर ई सफर। अगर ये परमार्थ का सफर तय करना है, ऐ भले पुरुष किसी पीर मुर्शद की पनाह लै। पीर मुर्शद की पनाह लै, क्यों? पीर रा बिगजी के बेपीर ई सफर हस्त और आप तो खौफो कथर। कहते ने ये अनेकों मुसीबत और खतरियां दे नाल भरिया पिया है, ये सानू धोखा दे जाएगा। जिहड़े लोग ग्रंथ पोथियां जां होर चीज़ों के उत्ते अपने एतकाद कायम रख के बैठे हुए हैं, विचार के देखो, प्रत्यक्ष गुरु के पास बेनती करके असी सहायता लेने हाँ, वो साडी सुनदा है, साडी सुन के सानू जवाब भी दिंदा है, साडी तसल्ली भी कराउंदा है, सानू भरोसा भी दिंदा है। गुरु चेतन है, लेकिन ग्रंथ पोथियां जिहड़ियां हैं चेतन नहीं है। गुरु अगे पिछे की सोझी रखता है, लेकिन ग्रंथ पोथियां अगे पिछे की कोई सोझी नहीं रखती है। सो अगर साड़ी मदद कर सकता है संसार उते, तो वह गुरु कर सकता है। कोई ऐसी चीज जिहड़ी चेतन नहीं है, उहदे तो सानू कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। आदमी का आदमी ही मददगार दुनिया से बनता है, आदमी आदमी पासों सहायता मंगता है, किसी चीज से कोई चीज तुर के आके सहायता नहीं करती। इस वास्ते प्रत्यक्ष गुरु का होना जिहड़ा है, ये बड़े उच्चे भागां की गल है। अगे की कहते, अगे सुनो। रसक रहूं तुन माहे और कुछ ना है सुहावत। सतगुर, जिहड़ी धुन का स्वाद तू एक बार दे दिता है, जिस शब्द नाल जुड़ के मैनू एक बार तू रसिया बना दिता है, हुण मेरे पास स्वाद खो लिया है। हुण बार बार उस स्वाद नू मैं लभदा हाँ, उस रस नू लभदा हाँ। सतगुर दया कर, रहम कर, मैं मैनू उस शब्द का रस फिर दोबारा बख्श दे, ताकि मैं उस रस विच रसिया बन के उस रस का स्वाद लवां और अपना ख्याल जिहड़ा है किते बाहर ना कड्डां, सदा उस शब्द विच लगा रहा। वो शब्द जिहड़ा है वो अति मिठा है, अति प्यारा है। संत महात्मा उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। असी शब्द उन्होंने कहते जिहड़े ग्रंथ पोथियां च लिखे हैं, लेकिन वो शब्द तो साडे सब के वजूद के अंदर है। बाणी विच आउंदा है, गुर का शब्द महारस मीठा। गुरु का जिहड़ा दिता हुआ शब्द है वो तमाम रसां तो वड्डा रस है और अति मिठा और अति लजीज है। ते कहते ने फिर वो लभदा किथों वो शब्द? कहते ने ऐसा अमृत अंतर डीठा। इहो जिहा अमृत जिहड़ा है वो साडे वजूद के अंदर है, साडी देह के अंदर है, वो शब्द बाहर नहीं है। तो बाहर जिन्ना चिर तक सानू उस शब्द की सोझी नहीं, सानू गुरु की लोड़ ही किस्ता पाती है। बिना गुरु की दया और मेहर के असीं उस शब्द को नहीं पकड़ सकते, बिना दया मेहर के असीं उहदे चों रस नहीं लै सकते। और सिख जिहड़ा रस लै चुकदा है, बार बार उस रस के नाल उस रस को लैके उस रस वाल दौड़दा है, पर गुरु दया करे तां ही शब्द को पकड़ सकता है, नहीं तो शब्द नहीं पकड़ सकता। जी दुख पाए मैं बहुत नीचे मन कहा
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ स्वामी जी महाराज ने उस दुखी सिख के हिरदे की किस तरह तर्जमानी की है और की कुछ कह रहे हैं। जो साड़ियाँ कमजोरियां हैं एक सिख के अंदर आउंदियां हैं, ये महात्मा त्रैकालदर्शी होंदे हैं, साड़ियाँ सारिया चीज़ों को ये अच्छी तरह जानते बुझते हैं। इन्हों दसन दसाउण की कोई लोड़ नहीं है। इहो जिहे शब्द तो उस दे अंदरों ही निकल सकते हैं जिसका जिहड़ा आप इस रस्ते दे विच दी हो के गुजरिया। तो तुसीं देखो एक दुखी हिरदे की तर्जमानी कर रहे हैं, की कह रहे हैं, फिर तो ये होई बोलो। दुख पाए मैं बहुत नीचे मन कहा मनावत। हे सतगुर अज तक मैं मन दे आखे लगता आया, मैनू पता है कि गुरु दे आखे लगिया सुख मिलता है, पर मेरा मन इन्ना नीच है ये तो मेरा साथ ही नहीं छड़ता। ये गुरु की गल जिहड़ी है उसकी तो परवाह नहीं करता, उसका जवाब देने वास्ते ये अपनी कुमत पासों कोई ना कोई दलील लैके लोगों को झूठिया कर दिंदा है, लेकिन जो गुरु कहता है वो करने को तैयार नहीं है। इस वास्ते मेरा मन नीच है। अज तक इन मैनू दुखों के विच गलतान रखिया है, हुण भी मेरा खैड़ा नहीं छड़ रहा। सतगुर मैं किवें बचा, मेरे ते दया कर। कैसे करूं पुकार शब्द में नहीं लगावत। मैं किहड़े तरीके नाल अरदास करा, किस तरह बेनती करा जिहड़ी तू मेरी सुन लवें। ये मैनू शब्द विच बिल्कुल नहीं लगन दिंदा। जदों नाम की कमाई का समा आउंदा है उदों की हुंदा है, कहंदे ने ये मंजी दे उत्ते पा के सवा दिंदा है। पंजवीं पातशाही की कहंदे हैं, चितवत पाप न आलक आवे, बेसवा भजत नहीं शर्मावे। विचार के इस मन की हालत देखो, कहंदे जिस वक्त ये पापां का सिमरन करता है, खोटे ख्यालों को दिल में लैके बैठ के उन्होंने पूर्ति लिए सोचा सोचता है, कहते कोई मासा जी नहीं शर्म खांदा है, कहते बिल्कुल नहीं शर्म खांदा। चितवत पाप ना आलक आवे, और ना इन्हू कोई आलक आउंदी है, ना सुस्ती आउंदी है, कोई ना नींद आउंदी है। रात बराते ये नदियां लंघ जाता है, जंगलों पहाड़ों पार कर जाता है कि कादे वास्ते, एक खोटा कर्म करने वास्ते। चितवत पाप ना आलक आवे, बेसवा भजत नहीं शर्मावे। जदों पराइयां स्त्रियों का ख्याल दिल में लैके बैठता है उदों शर्म खांदा है, कहते बिल्कुल नहीं शर्म खांदा। सारो दिन से मजूरी करे और सवेर तो लग के शाम तक हड भन के दुनिया की कार करता है। हल वाउंदा है, खेतों से जाता है, चौकड़ियां मार के सारी सारी दिहाड़ी सवेर तो लग के हट्टियां च बैठता है, शामां नूं चौकड़ी खोलता है, पेशाब पखाना दा है, उसकी भी परवाह नहीं करता कि किते गाहक आए चले ना जान, चलो ये भी रोगी हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन अपनी चौकड़ी नहीं खोलता। तो कहते जिस वक्त भजन सिमरन का समा आता है उस वक्त 2 मिनट भी चौकड़ी नहीं वजदी, जी चौकड़ी सारी दिहाड़ी वजी रही है वो 2 मिनट उस वक्त मारने तैयार नहीं होंदा, क्योंकि गुरु के हुक्म नाल मारनी है। चितवत पाप ना आलक आवे, बेसवा भजत नहीं शर्मावे। सारो दिन से मजूरी करे ते हर सिमरन वेले वजर सिर पड़े। जिस वक्त हर सिमरन का समा आता है उस वक्त ये पत्थर रख दिता जाता है, जाग भी आती है। विचार के देखो घंटियां वख वजदियां हैं, घुग्गू वख वजदे हैं, और सेवादार वख आवाज दे के पुकारते हैं भी उठो भजन सिमरन का समा हो गया है। ये घंटियां भी सुनता, घुग्गू भी सुनता, उन्होंने बोल भी सुनता है, लेकिन फिर चादर अगर इतों तक हो तो खिंच के फिर सिर तक ला लेता है और सौ जाता है। तो ये सारी हालत ये महात्मा केड़ी कमजोरी है जिहड़ी वो साडी नहीं जानते, साडी हर कमजोरी नूं जान के उहदे उत्ते रोशनी पा रहे जी। आज बने तो बने बाहर यह दाओ ना पावत। हे सतगुर ये भी मैं तुहाडे दरबार विचों सुन लिया है, हुण मनुख दे मिली है, हुण दा फुरिया है,
ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਜੀ। मैं हूँ दीन आधीन, ईर्खा बहुत जरावत। हे सतगुर, मैं इन्ना कोझा है, इन्ना निकम्मा है, इन्ना भैड़ा हाँ। कहते मैनू हर वक्त ईर्खा सताउंदी रहिंदी है। सतगुर का ध्यान छड्ड के, शब्द का ध्यान छड्ड के, सिमरन का ध्यान छड्ड के फलाना बंदा बड़ा भैड़ा जे, वह बंदा बड़ा माड़ा जे, उहदे नाल गल ना करियो, उहदे राह ना जाओ, उहदे इहो ही दिन रात सोचदा रहना है। ये ईर्खा साड़ा जिहड़ा है, ये मेरे लहू नूं तपाई रखदा है दिन रात, मेरे अंदर शांति नहीं आउण दिंदा। हे सतगुर, ये मेरे च कमजोरियां आ चुकियां हैं। इन्हां कमजोरियां नूं जिस तरह भी हो सकता है आप रफा करो, मेरे च ताकत नहीं रही जी। मैं तो कलह अपार, काहे को नित बढ़ावत। हे सतगुर, निक्की निक्की मुसीबतां जिहड़ियां हैं वो वड्डियां हो के पहाड़ बन के खड़ियां हो जांदियां हैं। वो उत्थे दियां उत्थे खत्म हो जानियां चाहिदियां हैं, लेकिन वो वड्डियां हो जांदियां ने, फिर सानू अपनी गिरफ्त विचों निकल नहीं जाती। कहते हैं, एक फकीर कहता है, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक। कहते ने जदों कोई गाल कढ़दा है उदों वो इक्को हुंदी है, जदों वो उल्ट के उस गाली का जवाब गाली च दे दिंदा है तो कहते अगला होर कढ़ दिंदा है, फिर ओहदा जवाब दिंदा अगला होर कढ़ दिंदा है। इस तरह वध्या झगड़ा फसाद और एक दूसरे च गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे से कतल वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। ये लेखा कित्थे तक पहुँचता है? अगर उत्थे दी उत्थे चीज़ खत्म कर दी जाए तो कहते ठीक है, लेकिन ऐ सतगुर मेरियां मुसीबतां निक्कियां तो वड्डियां हुंदियां चलियां गईयां हैं और इन्हां ने मैनूं अपने घेरे च ले लिया है। आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, वाही को ना उल्टिए वही एक ही एक। जे ओदा जवाब ना दईए तो कहते ओह दी ओह रह जाती है, लेकिन मन नहीं बर्दाश्त करता। कहते है एक अदना आदमी और मैनू ये गल कह के तुर जाए, असी उस पासों बदला लैण वास्ते उसनूं दुख दिंदे हां और उसनूं तसीहे दिंदे हां, वो फिर होशियार के हो जाता है और निक्कियां निक्कियां मुसीबतां वड्डे वड्डे पहाड़ बन जाती। इस वास्ते कहते ने, हे सतगुर, मैनूं इन्हां मुसीबतां ने घेर लिया जी। तुम ही करो सहाय, मोर कुछ ना है बसावत। हुण सिख कहंदा, हे सतगुर, हुण तू ही सहायता करे तो शायद कोई मेरी सुनी जावे और मेरी कुछ मदद हो जावे। मेरे वस का रोग नहीं रहा, मेरे वस में ही नहीं रहा कि इन्हां मुसीबतों के उत्ते मैं काबू पा सका, इन्हां मुसीबतों के विचों निकल सका, इन्हां तो छुटकारा हासिल कर सका और नाम नूं पकड़ सका। जिन्ना चिर तक हुण तुसीं सहायता न करोगे, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मेरे अंदर कोई बल नहीं जी। डरत रहूं दिन रात, काल से जान छिपावत। कहते हैं, मैं दिन रात डरदा रहना और काल सिर उत्ते खड़ा जिहड़ा है देख रहा है, मैं उहदे पासों लुक के कित्थे जा सकदा हां। जे इन्हां उपाधियां दा मैं शिकार रहा, इन्हां मुसीबतां और दुखां च घिर के मैं अपना असल मनोरथ जींदे जी प्राप्त न कीता, हे सतगुर, मैं काल पासों अपने आप नूं नहीं लुका सकांगा।
काल जिहड़ा है वो मेरे ते जरूर हमला करेगा। इस वास्ते मेरे ते दया करो, तरस करो, मैनू काल तो बचाओ जी। मैं करूं पुकार, ख्याल तुम क्यों नहीं लावत। हार के इन्नियां बेनतियां करके सिख भी जज्बे च आ गया, कहते हाय हाय एक बार कही हुई गल जिहड़ी है वो सुन लेंदा है बंदा, दूजी वारी सुन लेंदा है। मैं तो इन्नियां चिर दियां बेनतियां कर रहा, तुसीं मेरी गल सुनदे क्यों नहीं, मेरी हल ध्यान क्यों नहीं देंदे। मेरी गल तो सुनो, मैं की कह रहा है तुहाडे अगे, की बेनती कर रहा हाँ। जो मैं बेनती की है हे सतगुर दीन दयाल, उसनूं सुन तो लो। जो मैं कह रहा हाँ कह तो दिओ भी मैं सुन ली है, और मैं तेरी इस दिन विनती कर दियांगा। तुसीं बोलदे ही नहीं, की कारण है जी। मरम ना जानो नेक, मौज तुम कहा करावत। कहने सतगुर मैनू कोई राह नहीं लभदा, तू किस तरह खुश होना है, तू किहड़े ढंग नाल मौज विच आउणा है, और किस तरह तेरे पासों रहमत लई जा सकती है। मेरी नकारी अकल इस चीज नूं भी नहीं सोच सकती। हे सतगुर मेरे च कोई चितराई नहीं, मेरे विच कोई खूबी नहीं, कोई वडियाई नहीं है, जिस सदका तेनों मना के कहते ने मैं तेनों इस जज्बे के अंदर ले आवां कि तू कह दवे कि जा तेनों बख्श दिता, तेरियां पिछलियां मुसीबतां सारियां खत्म कर दित्तियां, अज तो तेरा शब्द नाल प्यार जुड़ गया। मैनू वो गल कहनी नहीं आती है सतगुर, मैं तेनों किस तरह खुश करा, मैनू तो वो तरीका भी नहीं आता जी। कहाँ लागे कहूँ जनाए, नेक मन बात नहीं आवत। हे सतगुर मैं हुण ये तेनों किस तरह दसां, मैं किहड़े ढंग नाल ये अपना हिरदा खोल के तेरे अगे रखदा वां, ताकि तू अच्छी तरह देख लवें कि मैं जो कुछ कह रहा हाँ ये अंदरों कह रहा हाँ, दिलों कह रहा हाँ, तनों मनो कह रहा। कहते कोई तरीका मैनू नहीं सोचदा, मैं अति मुसीबत विच गिरफ्तार हाँ, मेरा भजन सिमरन औखा नहीं बनता। हे सतगुर दुनिया दे विच ख्याल खिंडिया पिया है, इकट्ठा नहीं होंदा, वापस नहीं मुड़दा, शब्द च लज्जत नहीं लैंदा। मेरे ते दया कर, मैनू नहीं सोची कि मैं किहड़े तरीके नाल तैनूं मनावां जी। सदा रहे तुम साथ, तो तुम क्यों ना बचावत। कहते तू आपे कहना है जदों मैं नाम दिना हाँ मैं अंदर आके बैठ जाना हाँ, और तेरा संग कदी नहीं छड़दा, तेरे कोल रहना। फिर तू आप कोल हुंदियां ही मैनू अंदर नहीं लगन दिंदा, ये मेरा कसूर होया फिर तेरा कसूर होया। हे सतगुर सोच, तू मैनू क्यों नहीं नाल जुड़न दिंदा, जदों तू नाल मैनू लगन ही नहीं दिंदा, दस मैं की करा। मौलाना रूम साहब अपने मुर्शद शमस तबरेज नू कहंदे हैं, हे मेरे प्यारे सतगुर मैनू ये तो दस कि मैनू तू हुण इस दुनिया दे विच किन्ना चिर धोना है, किन्ना चिर तक घसीटना है, और किन्ना चिर तक मैनू इस तरह खुआर और खज्जल करना है, मैनू कद अपने घर विच लैके मुड़ना है। तो शमस तबरेज जी की जवाब दिंदे हैं, कहंदे चुप रह, जबान बंद कर, ये मैनू पता है कि मैं तेनू कदों ले जाना है और किस समय ले जाना है। जब तेरे नाल मैं गंढ पा लिया, तेरे नाल प्यार पा लिया, ਇਹਦਾ फिक्र हुण मैनू होना चाहिए है कि तैनू होना चाहिए है। की कहते अगे अगे सुनो। अचरज पारी होत समझ में नेक न आवत। कहते ने कोल बैठा सब कुछ देखी जा रहा है, ये वड्डे अचरज की गल हो सकती है, और फिर सहायता नहीं कर रहा है। तू चाहना है मैं इस तरह ही रहा। कहते कोई गल भी जी है मेरी समझ है सतगुर नहीं आ रही
जी। गुर बिन रशक नाहे, कहे साध यही कहावत। सारी दुनिया कहते सब संत महात्मा यही पुकार के गए हैं कि गुरु तो बगैर रक्षक कोई नहीं है, गुरु तो बिना सहायता करने वाला कोई नहीं है, गुरु तो बिना मददगार इस संसार से कोई नहीं है। मैं सब दियां सुनना हाँ, पर तू तो चुप बैठा है, क्यों नहीं मेरी मदद कर रहा? हे सतगुर मेरे ते रहम कर, मेरे ते तरस कर। कौन कर्म में किए नित यह भुगतूं आफत। मैनू नहीं पता मैं केड़े केड़े भैड़े कर्म करके इत्थे आया हाँ, जिन्ना सदका मैं आफतां भुगत रहा हाँ, मुसीबतां भुगत रहा हाँ और दुखां विच चूर हो गया जी। हार पड़ी अब दुआर, बाहर में तुम्हें मनावत। मैं हुण सब पासे हार के तेरे दरबार विच अड़ गई हाँ, सिर्फ इस खातर कि हुण मैं तेनू मना लवां किसी ढंग नाल, ताकि मेरी इन्हां दुखां तो निजात हो जाए। जस तस दीजे दान, और कोई चित न समावत। कहते दया दा दान मंग रहा हाँ, मेहर मंग रहा हाँ, जिससे भी हो सके मैं झोली अड्डी हुई है, हुण मेरी झोली च वो दान पा दिओ जी। राधा स्वामी नाम पहरे आठों अब गावत। दस अपना मकसद अखीर ते दसिया है कि मेरी अठे पहरे ये ख्वाहिश है कि मैं उस नाम नाल जुड़े रहा और उस नाम नाल जुड़ के कहते हे सतगुर मैं इन्हां दुखां तो छुटकारा पा के इन्हां चों निकल जावां। राधा स्वामी नाम पहरे आठों अब गावत। जिथे संगत रोज शाम नूं सेवा रोड़ी दी करदी है, उसे ही जगह सेवा होवेगी।